आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट हाउ टू मेक अ चॉइस अमंग द ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक. ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स आर सेम एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स. आजकल हम इनको ओएडीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हम जो डायबिटीज के लिए यूज करते हैं दे डू नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया. ओके, सो दे आर रीनेम्ड एज ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स. तो इससे पहले मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूं, आई वांट टू टेल यू कि मेटफॉर्मिन दैट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज. Particularly, I'm talking about type 2 diabetes patient, that metformin is the first choice of drug unless contraindicated. Okay, and it is cheap, it causes weight loss, it improves lipid profile, and it has a good HbA1c reduction of 1 to 2%. So that makes it as the first choice. Now, you need to know about the contraindications of metformin. Okay. So what are the contraindications of metformin? First and foremost, renal impairment. पहले बोला जाता था कि EGFR जब 45 ml पर मिनट से कम है सो हमें मेटफॉर्मिन contraindicated है. But now the latest FDA recommendation suggests that it can be given at a EGFR of 30 to 45. It is contraindicated at EGFR of less than 30. So first contraindication is EGFR of estimated glomerular filtration rate of less than 30 ml per minute. दूसरा है एनी फॉर्म ऑफ एसिडोसिस, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर मेटफॉर्मिन थेरेपी. क्योंकि आपको पता है कि मेटफॉर्मिन, द मेजर टॉक्सिसिटी ऑफ मेटफॉर्मिन थेरेपी इज लैक्टिक एसिडोसिस. दिस इज रेयर, बट अगर किसी पेशेंट को पहले से ही एसिडोसिस है तो यू शुड नॉट गिव मेटफॉर्मिन टू दैट पेशेंट, राइट. अब इसके लिए क्या है, मान लो किसी को अनस्टेबल कंजस्टिव हार्ट फेलियर है या किसी को लिवर डिजीज है या किसी को सिवियर हाइपोक्सीमिया है. सो ऑल ऑफ दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्योंकि दे ऑल प्रीडिस्पोज टू एसिडोसिस. Okay, so these are all predisposing factors for acidosis, so they are contraindications, right. एक चीज मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा, MCQ में if somebody asks you that vitamin B12 deficiency anemia, so let me tell you that is not a contraindication. Although metformin is associated with lower vitamin B12 levels, but that is not a contraindication. आप साथ में उसको treat कीजिए, you can give metformin to the patient, right. From MCQ point of view, it is important that vitamin B12 deficiency is not a contraindication. Apart from that, what are the other contraindications? Hospitalized patients, you have to stop metformin. Or in patients who are too ill, who cannot take anything orally, again metformin is contraindicated. Apart from that, patients who are undergoing radiographic contrast studies, you substitute it with insulin meanwhile. So these are the contraindications of metformin. Estimated glomerular filtration rate less than 30, any form of acidosis, unstable congestive heart failure, liver disease, severe hypoxemia, hospitalized patients, and radiographic contrast studies. Now we'll talk about our main topic, that is how to make a wise choice among oral anti-diabetic drugs. If cost is a concern, it's a very important because majority of people which come to visit our clinic nowadays, they are poor, they cannot afford the drug therapy. So if cost is a concern, so I've told you first choice would always be metformin, right, unless contraindicated or not tolerated. So here only you need to know about the side effects, because if there are intolerable side effects to metformin, again you have to stop it. So what are the side effects of metformin? Mainly it has GI side effects. Nausea is the major, limiting side effect. So apart from that, it can cause diarrhea, nausea, anorexia, diarrhea, metallic taste. It decreases vitamin B12 levels. It's a side effect, not a contraindication, okay.
and lactic acidosis. These are its side effects. And what is the maximum tolerated dose of metformin? That is 2000 milligram per day, right? So पहला ड्रग आप उसको मेटफॉर्मिन चलाएंगे, उसके बाद यू कैन मेक अ चॉइस. सेकेंड लाइन आप क्या दे सकते हैं? सेकेंड लाइन आप या तो पेशेंट को दे सकते हैं सल्फोनिल यूरियास, या फिर आप दे सकते हो थायाजोलिडीन डायोन्स यानी ग्लिटाजोन्स, पायोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन. बोथ ऑफ देम आर चीप ड्रग्स. या तो उसको आप सल्फोनिल यूरियास दे दो या ग्लिटाजोन्स दे दो. इंडिया में सल्फोनिल यूरियास आर चीप, राइट? ग्लिमिप्राइड दे दो, ग्लिपिजाइड दे दो, ठीक है, ग्लिक्लाजाइड दे दो. यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा कि जब आप सल्फोनिल यूरियास के बारे में चॉइस करते हैं तो पर्टिकुलरली अवॉइड दिस ग्लाइबुराइड और ग्लिबनक्लिमाइड इन एल्डरली पेशेंट्स, क्योंकि इसका हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है, ठीक है. सो ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकाजाइड, दे आर गुड चॉइस, ठीक है. ग्लिमिप्राइड और ग्लिपिजाइड को तो आप ओडी डोजिंग में भी दे सकते हैं. ऑल्सो दे आर सेफ इन रीनल डिजीज, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड एंड ग्लिपिजाइड, राइट. सो सल्फोनिल यूरियास दे सकते हैं या थायाजोलिडीन डायोन्स दे सकते हैं. थर्ड लाइन में अगर इससे बात नहीं बनती है तो फिर आप बाकी ड्रग्स यूज कर सकते हैं. थर्ड लाइन में आप DPP-4 इनहिबिटर्स दे सकते हैं या SGLT2 इनहिबिटर्स दे सकते हैं. SGLT2 इनहिबिटर्स दे आर कॉस्टली ड्रग्स, राइट? तो बट आपको इसके बाद यू हैव टू मेक चॉइस कि आप इंसुलिन ऐड करना चाहते हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स ऐड करना चाहते हैं. GLP-1 एगनिस्ट कॉस्टली हो जाता है क्योंकि इंजेक्टेबल्स होते हैं, ठीक है. पेशेंट विल नॉट अफोर्ड इट, अ पुअर पेशेंट. SGLT2 इनहिबिटर्स कोई चीपर अगर वैरायटी है तो आप वो दे सकते हैं, बट दिस इज अ वाइज choice to make in a patient who is poor, who cannot afford the drug therapy. Okay, next category we'll talk about is if hypoglycemia is a concern. फ्रेल पेशेंट है, क्रिटिकली इल है. वैसे तो कोई भी बहुत ज़्यादा सिवियरली इल पेशेंट है तो उसमें आपको इंसुलिन ही स्टार्ट करनी चाहिए. बट अगर कोई ऐसा पेशेंट है, मान लो कोई अल्कोहलिक है, जो कि बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि अल्कोहलिक पीपल दे आर वेरी लाइकली टू गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया. एक तो वो खाना नहीं खाते हैं, दूसरा उनकी सल्फोनिल यूरिया के साथ इंट्रैक्शंस होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया की टेंडेंसी बढ़ जाती है, राइट? तो इफ हाइपोग्लाइसीमिया इज अ कंसर्न तो फिर आपको कौन से ड्रग देने हैं विच डू नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया? सो व्हाट आर दोज ड्रग्स? फर्स्ट लाइन तो देखो मेटफॉर्मिन होगी. सेकेंड लाइन क्या होगी? सेकेंड लाइन में आपको पेशेंट को वो सभी ड्रग्स दे सकते हो जो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराते. इट इंक्लूड्स थायाजोलिडीन डायोन्स, राइट? इट इंक्लूड्स योर GLP-1 agonists, it includes SGLT2 inhibitors, it includes DPP-4 inhibitors. So ये सभी आप ड्रग पेशेंट को दे सकते हैं बिकॉज दे डू नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया. पर्टिकुलरली यू हैव टू अवॉइड इंसुलिन, सल्फोनिल यूरियास एंड मेग्लिटिनाइड्स बिकॉज ये तीन कैटेगरी हैं ऐसी जो कि हाइपोग्लाइसीमिया करा सकते हैं. Apart from that, alpha glucosidase inhibitors, they also do not cause hypoglycemia, right? So these drugs can be used. अब एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन. सो व्हाट इज दिस? बेसिकली क्या है, आपको हर पेशेंट को सबसे पहले मेटफॉर्मिन स्टार्ट करना है. आपने 3 मंथ पे पेशेंट को फिर से असेस करना है थ्रू HbA1c और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज. अगर पेशेंट का HbA1c 9% से ऊपर रहता है या फिर उसका जो इंडिविजुअलाइज टारगेट है उससे मेट नहीं हो रहा है, या पेशेंट का जो टारगेट है, देखो टारगेट HbA1c कितना होता है, 7% होता है इन अडल्ट. तो अगर 7% उसका नहीं पहुंच रहा है, राइट, तो फिर आप क्या करोगे, उसको ड्यूल कॉम्बिनेशन थेरेपी पे डालोगे, ठीक है, दूसरा ड्रग ऐड करोगे. सो दैट इज द सेकंड लाइन. अगर उसके बावजूद भी HbA1c हाई रहता है देन यू विल मूव ऑन टू द थर्ड लाइन. सो दिस इज, यू विल मेक अ चॉइस. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी. यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले आप मेटफॉर्मिन स्टार्ट करोगे, आप 3 मंथ्स पे असेस करोगे, पेशेंट का HbA1c अभी भी हाई है, आप दूसरा ड्रग ऐड करेंगे.
फिर आप असेस करेंगे 3 मंथ्स पे, राइट. अगर अभी भी हाई है तो यू विल ऐड अनदर ड्रग. तो दिस इज हाउ यू विल मूव फर्दर. बट वेन विल यू थिंक ऑफ डुअल कॉम्बिनेशन थेरेपी एट द वेरी ऑनसेट, कि पहली बार ही आपके पास पेशेंट आया, आप उसको 2 ड्रग्स पे डाल दोगे. तो अगर HbA1c पहली बार ही पेशेंट का 9% से ज़्यादा है तो यू विल स्टार्ट विद द डुअल कॉम्बिनेशन थेरेपी, राइट. और अगर HbA1c 10% से ज़्यादा है तो यू हैव टू गिव द इंजेक्टेबल थेरेपी, राइट. साथ में आप ओरल दे सकते हैं. इंजेक्टेबल में आप तो GLP-1 एगनिस्ट दो या इंसुलिन दो. अगर पेशेंट का 10% से ज़्यादा HbA1c है या उसका जो ब्लड ग्लूकोज है दैट इज मोर देन 300, तो फर्स्ट टाइम ही आपको पेशेंट को इंजेक्टेबल थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट, अकॉर्डिंग टू ADA गाइडलाइंस. नाउ अनदर हम बात करेंगे कि इफ हमने कॉस्ट की बात कर ली, हमने बात कर ली कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया इज अ कंसर्न. अनदर थिंग इज कि अगर आप वेट लॉस करवाना चाहते हैं, अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट है, ओके, अगर वेट लॉस इज इंटेंडेड तो उसमें आप क्या करेंगे. तो अगर वेट लॉस इज इंटेंडेड तो आप ऐसे ड्रग चूज करेंगे. फर्स्ट ड्रग तो ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू दैट वुड बी मेटफॉर्मिन, राइट. पहला ड्रग मेटफॉर्मिन होगा बिकॉज मेटफॉर्मिन ऑल्सो कॉजेस मॉडेस्ट वेट लॉस. मेटफॉर्मिन से HbA1c कंट्रोल नहीं हो रहा, तो व्हाट वुड बी द सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन में आप दे सकते हैं या तो पेशेंट को आप दे सकते हैं SGLT2 इनिबिटर्स, क्योंकि SGLT2 इनिबिटर्स जो होते हैं वो वेट लॉस कराते हैं. या फिर आप पेशेंट को दे सकते हैं DPP4 इनिबिटर्स, राइट, सॉरी GLP-1 एगनिस्ट. GLP-1 एगनिस्ट जो है वो वेट लॉस कराते हैं. DPP4 आर वेट न्यूट्रल, राइट. तो सेकेंड चॉइस वुड बी ईदर SGLT2 इनिबिटर्स और GLP-1 एगनिस्ट, राइट. व्हाट वुड बी द थर्ड चॉइस. अगर नहीं बात बन रही है, अभी भी HbA1c हाई है, तो दोनों को कंबाइन कर दो, राइट. एड SGLT2 इनिबिटर्स प्लस दिस GLP-1 एगनिस्ट. अगर उससे भी बात नहीं बन रही है देन यू विल ऐड DPP4 इनिबिटर, क्योंकि दे आर वेट न्यूट्रल, दे विल नॉट कॉज एटलीस्ट वेट गेन. particularly you have to avoid insulin and sulfonylureas, क्योंकि ये वेट गेन कराते हैं, right. So this is what you can do. Okay, now we will go on to the main chunk of the patient which are having atherosclerotic cardiovascular disease, CKD or congestive heart failure. So now we'll talk about the patient who are having atherosclerotic cardiovascular disease, right. या तो जिनको established atherosclerotic cardiovascular disease है या फिर जिनको हाई रिस्क है और हाई रिस्क. अब वो हाई रिस्क किसको है. हाई रिस्क उनको बोलते हैं जैसे कि मान लो कोई 45 ईयर्स से ज्यादा, 55 ईयर्स से मोर देन इक्वल टू 55 ईयर्स है, प्लस कैरोटिड और कोरोनरी और लोअर एक्सट्रीमिटी आर्टरी स्टेनोसिस मोर देन 50%. ठीक है, कि पेशेंट या तो 55 ईयर्स से ज्यादा है या फिर उसके इनमें से किसी भी एक आर्टरी में स्टेनोसिस मोर देन 50%, तो दैट इज एट हाई रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज. या फिर पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, सो दिस इज इंक्लूडेड इन द हाई रिस्क. तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है, डायबिटिक पेशेंट है, सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट चॉइस. सो फर्स्ट चॉइस अगेन इट वुड बी मेटफॉर्मिन अनलेस इंटॉलरेबल और कॉन्ट्राइंडिकेटेड. आई थिंक मुझे वो ऐड करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि मेटफॉर्मिन पहला ड्रग होगा अनलेस इंटॉलरेबल और कॉन्ट्राइंडिकेटेड, राइट. सो व्हाट वुड बी द सेकंड चॉइस. देखो अथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाले पेशेंट में सेकंड चॉइस विल बी GLP-1 एगनिस्ट और SGLT2 इनिबिटर्स. अब थोड़ा सा यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा GLP-1 एगनिस्ट के बारे में. GLP-1 एगनिस्ट में भी पर्टिकुलरली जो लीराग्लुटाइड है और जो सीमाग्लुटाइड है, राइट, they decreases the in a patient of established atherosclerotic cardiovascular disease, they decreases the all cause mortality, they decreases the cardiovascular disease events, they decrease the hospitalization for congestive heart failure, okay. Also they decrease the risk of nephropathy.
सो दीज आर देयर एडवांटेजेस। वो ऑल कॉज मोर्टेलिटी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की होती है उसको कम कर देते हैं, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को कम कर देते हैं, राइट। कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज देयर एडवांटेज। पर्टिकुलरली GLP-1 एगनिस्ट में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लीराग्लुटाइड और सीमाग्लुटाइड की। और SGLT2 इनिबिटर्स में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, कैनाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, राइट। सो ये है, फाइन। अब आ गया कि अगर मान लो, तो यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूं कि व्हाट इज देयर एडवांटेजेस, राइट। ये जो ड्रग्स हैं व्हाट डू, दे डिक्रीज cardiovascular events, all cause cardiovascular mortality, right, and apart from that they decrease heart failure related hospitalization, and also they decrease the risk of nephropathy, they decrease the risk of diabetic kidney disease. These are their advantages, right. SGLT2 इनिबिटर जब भी आपको स्टार्ट करना है तो आपको EGFR का ध्यान रखना है, वो मैं अपने सब्सिक्वेंट डिस्कशन में बताऊंगा, राइट। थर्ड चॉइस क्या होगी, थर्ड चॉइस होगी कि दोनों को कंबाइन कर दो, अगर इंडिविजुअली नहीं बात बन रही तो दोनों को कंबाइन कर दो, राइट। और फोर्थ चॉइस क्या है कि अगर पहले से पेशेंट को GLP-1 एगनिस्ट नहीं दे रहे तो आप DPP-4 इनिबिटर ऐड कर सकते हो। माइंड यू दोनों को एक साथ नहीं चलाना है, GLP-1 एगनिस्ट और DPP-4 इनिबिटर को एक साथ नहीं चलाना है, ठीक है, ईदर ऑफ वन, राइट। नहीं तो फिर आपको बाकी जो भी ड्रग्स हैं, पर्टिकुलरली आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा जो अथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वाले पेशेंट में आपको इन ड्रग्स को प्रेफर करना है, अदरवाइज ऑल ऑफ द ड्रग्स दे कैन बी यूज्ड विद कॉशन, राइट। सभी ड्रग्स को यूज किया जा सकता है, बट दीज आर द प्रेफर्ड ड्रग्स इन दैट पॉपुलेशन, ओके। ओके, लास्ट पार्ट की हम बात करेंगे कि अगर मान लो कोई हमारे पास पेशेंट आ गया जिसके हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, यानी लेस देन 45% इजेक्शन फ्रैक्शन है, या फिर पेशेंट को CKD है, तब आप क्या करोगे, राइट। सो अगेन मेटफॉर्मिन फर्स्ट चॉइस होगा, लेकिन वही मैंने जैसे आपको बताया, अगर अनस्टेबल कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, क्लास 3 है, 4 है, तो उसमें आप नहीं दे सकते, या EGFR लेस देन 30 है तो आप उसमें नहीं दे सकते, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन वुड बी फर्स्ट चॉइस अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इस पॉपुलेशन में आपको मेटफॉर्मिन का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, EGFR लेस देन 30 तो नहीं है, या फिर अनस्टेबल कंजस्टिव हार्ट फेलियर तो नहीं है, क्लास 3 क्लास 4, राइट। सो अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। And what would be the second choice? Second choice would be SGLT2 inhibitors. SGLT2 inhibitors के बारे में मैंने अभी बताया कि SGLT2 inhibitors अभी बहुत रीसेंट एक डापा HF ट्रायल है जो कि बता रही है कि डापाग्लिफोजिन विच इज SGLT2 inhibitor, it has an independent benefit in patient of heart failure with reduced ejection fraction, चाहे उसको डायबिटीज हो या नहीं हो, समझ रहे हो। SGLT2 इनिबिटर्स का पेशेंट का हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में अपना इंडिपेंडेंट रोल है, राइट। RBS तो ये कम करते ही करते हैं, मतलब शुगर तो ये कम करते ही करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट दे डिक्रीज द BP ऑल्सो ड्यू टू इट्स डायरेटिक इफेक्ट, दे डिक्रीज द BP ऑल्सो, ओके। वेट लॉस भी कराते हैं। सो देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स थ्रू विच दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेशेंट विद हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन और CKD। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या याद रखनी है कि जो SGLT2 इनिबिटर्स के पेशेंट होते हैं ना, इनको they are contraindicated, they are contraindicated in EGFR less than 45, राइट। माइल्ड रीनल इंपेयरमेंट अगर पेशेंट को है ना, जैसे 60 से ऊपर है, पर्टिकुलरली अगर 60 से ऊपर EGFR है, सो दे रादर डिक्रीज द प्रोटीनूरिया, दे डिक्रीज द CKD प्रोग्रेशन, दे आर बेनिफिशियल। लेकिन अगर वही मॉडरेट टू सिवियर चला जाता है तो दे हैज टू बी स्टॉप्ड, राइट। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, दैट दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ EGFR is less than this. In EGFR more than 40, more than 60 particularly, they are rather beneficial
they decrease the progression, they decrease the proteinuria. Fine. और इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर, अगर SGLT2 इनहिबिटर आप नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इनटॉलरेबल है, देन यू विल गिव दिस GLP-1 एगोनिस्ट. मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से दे सकते हैं, पर्टिकुलरली लीराग्लुटाइड और सीमाग्लुटाइड, राइट, कि दे डिक्रीज द रिस्क ऑफ DKD, दे डिक्रीज द हार्ट फेलियर रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑल कॉज कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी, राइट. एंड थर्ड चॉइस अगेन, या तो कॉम्बिनेशन SGLT2 इनहिबिटर प्लस GLP-1 एगोनिस्ट, या फिर बाकी के ड्रग्स आप दे सकते हैं. बट पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको थायाजोलिडीन डायोन्स है ना, उनको हार्ट फेलियर के पेशेंट में बिल्कुल नहीं देना है, उनको हार्ट फेलियर के पेशेंट में नहीं देना है, राइट. एक सैक्साग्लिप्टिन आता है DPP-4 इनहिबिटर, उसको भी हार्ट फेलियर के पेशेंट में नहीं देना है. So this you have to remember. Okay, so this is all about making a wise choice in patient of diabetes, about the sequence of drug you will add. Okay, I hope it has been a beneficial session. Thank you for your patience.